आज का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके कई लेक्चर्स बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम फॉर्मूला पढ़ेंगे tan a प्लस बी का। साइन और कॉस से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। Similarly, we have the formula for tan a minus b, which is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. Now take a look on the formula. When we have plus, here we have plus tan a tan b, here we multiply both of them and with the minus sign. Now when we have minus a minus b, we have tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Now I'm going to explain you different types of questions based on this formula. For example, we have a question tan a is equal to 5 upon 30 or 5 upon 12, tan b is equal to 3 by 4. Find tan a plus b. Okay. Then just apply the formula tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. Now we substitute both the values over here. 5 upon 12 plus 3 upon 4 upon 1 minus 5 upon 12 into 3 by 4. Now we solve them. Now 12 fours are 48, we have LCM. 5 fours are 20, 12 threes are 36. Similarly, 1 minus 15 upon 48. And when we take LCM, 48, we can write over here 48 and in this. Now 48 get cancelled and we get 56 over 8 minus 5 that is 3, 4 minus 1 that is 3. ये कट नहीं रहा, अगर कटेगा तो आप सिंप्लीफाई कर लेना. So in this way, this is the very simplest way in order to find the formula for tan a plus b. इसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चंस है, केवल ये नहीं है, एक तरफ से शुरू कर रहे हैं. मान लीजिए अब यहीं पर हम आपको कह देते हैं we have to find tan a minus b. Then here we write minus and here we write plus. It becomes minus and it becomes plus. Similarly, it becomes minus, it becomes plus. And ultimately, the answer gets changed. Now, what is the answer? Which is equal to minus 16 over 8513 41516. If it is simplified, अगर ये कट जाए तो काट लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं. तो tan a plus b, tan a minus b दोनों मैंने आपको समझा दिया. अब हम दूसरी तरफ के क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट करते हैं. और भी अगर हमें पैटर्न दिया हो tan a plus b का, तो वो हम किस तरीके से करेंगे. For example, if it is given sin a is equal to 5 upon 30 and cos b is equal to 4 upon 30, or we can say 8 upon 15, and we have to find tan a plus b. तो घबराने की बात नहीं है कि साइन और कॉस में दिया है, मैं एक साथ ही मैंने ले लिया, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, दोनों साइन लेती फिर दोनों कॉस लेती फिर अलग अलग लेती. तो आप इतने बड़े हो कि आप समझ सकते हो. अब हम इसको, हमें ये निकालना है, तो हमें जरूरत क्या है, tan a प्लस tan b. यहाँ पर हो गया 1 माइनस tan a tan b.
अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन ए से हम tan ए निकालें, cos बी से हम tan बी निकालें। तो देखिए हम कैसे करें। अगर हमारे पास साइन ए की वैल्यू 5/13 है, तो या तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें या हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। cos square a is equal to 1 minus sin square a, so which is equal to 1 minus 5/13 का whole square, which is equal to 169 minus 25 upon 169, and we get 144 upon 169, and the value of cos A becomes 12/13. Here, now value of sin A 5/13, value of cos A 12/13. So ultimately, value of tan is what? Sin A upon cos A. I will write over here. Tan A is what? Sin A upon cos A. That means ultimately 13 and 13 get cancelled, and we left over with 5/12. So the value of tan A becomes 5/12. I'm writing over here tan A is equal to 5/12. Now we calculate with the help of cos B the value of tan B. I think now you can easily proceed. Now value of cos B is this. So value of sin square B is equal to 1 minus cos square B, which is equal to 1 minus 8/15 whole square, which is equal to 1 minus 64 upon 225. That is 225 minus 64 upon 225. That means 5 minus 4, 1. 11 minus 6, 5. And 1 over 225. Okay. I will change this value so that we get the answer easily. I will take a relationship of 7, 3, 4, 5. I will take it 3 over 5. Then it becomes 3 square over 5 square, and it becomes 9 over 25. I am taking these values so that in order to clear you concept, because there is no under root, I want that क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था क्योंकि 25 minus 9 over 25, and we get 16 upon 25. So value of sin B is what? 4 upon 25. Now value of tan B is equal to sin B upon cos B. Now value of sin B is 4 upon 25, and value of cos B is 3 upon 5. Sorry, 4 upon 5 when we take the under. 5 get cancelled, and we left over with 4/3. So value of tan B becomes 4/3. तो इस तरीके से अगर साइन ए और कॉस बी में वैल्यू दिया हो और tan ए का हमें सॉल्व करना हो, तो हम ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनसे हम tan ए tan बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan a plus b, which is equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. So tan a is 5/12. You can see over here tan a 5/12, tan b 4/3. 5/12 plus 4/3. Here we get 1 minus 3. So we solve 3 5s are 15, 12 4s are 48, and it is 36. Then here 12 3s are 36. 36 minus 20 over 36. 36 get cancelled. So we get, when we add 8 5 13,
415,163 upon 16. So if the values are given in sine and cos, then also you can solve the values for tan A plus B. Now, the next topic where we use the formula for if it is given in the form of tan A minus B, you substitute the values and find the values for tan A minus B. Similarly, in the same way. So, for example, if we have a question in this way, tan of pi by 12. We have to calculate the value of tan pi by 12. We can write in this way, pi by 3 minus pi by 2. क्योंकि हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 12 4 पाई माइनस 3 दैट इज पाई बाई 12. अगर आपको ये समझ में ना आए तो एक तरीका और है कि आप कैसे सेट करोगे. पाई बाई 12 को आप सॉल्व करें. पाई बाई 12 इंटू 180 बाई पाई. पाई पाई कैंसिल हो गया. ये हो गया 180 बाई 12. 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 15 आ गया. अब हमको 15 डिग्री को अगर सेट करना है तो हम 15 डिग्री को दो तरह से सेट कर सकते हैं. आइदर वे टेक 45 minus 32. It is the best way to arrange the tan 15 degree. The tan 45 degree is what? Pi by 4. And tan 30 degree is, here we arrange it in this way. हमने इसको किया है 60 डिग्री माइनस 45. तो भी देखिए ये 15 आ रहा है. अगर हम इस पर चलते तो ये ऐसे हो जाता है tan pi by 4 माइनस tan 30 डिग्री यानी pi by 6. तो ये आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो और आपका आंसर आएगा. ठीक है. तो अगर आप ऐसे अरेंज नहीं कर पाते, समझ में आता तो आप पाई को पहले एंगल में चेंज कर लो, फिर एंगल से आप वापस पाई में चेंज कर लो. ओके. तो अब हम मान लीजिए शुरू करते हैं. जो मैंने एजेम्प्ट किया है उसी से, ये स्टार्टिंग में ही एजेम्प्ट कर लेते हैं. तो हम इससे, तो हमने आपको दिखाया कि वापस पाई बाई 12 आ रहा है. तो हमारा tan ए माइनस tan बी ये हो गया. अब हम फॉर्मूला रखेंगे tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan बी. Value of tan A is tan pi by 3, tan B tan pi by 4 upon 1 plus tan pi by 3 tan pi by 4. Now we substitute the different values. As we know, pi by 3 is what? 180 by 3, which is equal to 60 degree. Now what is tan 60 degree? Tan 60 degree is under root 3. याद कर लीजिए, tan 60 डिग्री जो है वो अंडर रूट 3 है. tan 30 डिग्री जो है वो 1 बाई रूट 3 है. और tan 45 डिग्री जो है वो 1 बाई 1. तो tan पाई बाय 4 1 हो गया. यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 इंटू 1. दैट मीन्स वी हैव अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3. लेकिन नीचे कभी भी रूट नहीं रखते, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. देखिए हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं. तो कहीं पर भी पाई के क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप उसको किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हो जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. हम ऊपर नीचे इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइज करने के लिए. 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू, इसको हम चेंज कर सकते हैं या आप ऐसे ही कर लीजिए. लेकिन आप इसको अगर चेंज कर देते हैं तो इट्स बेटर फॉर अस कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम है. लेकिन रैशनलाइजेशन में बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि ऊपर अंडर रूट 3 माइनस 1 है. तो रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 रैशनलाइज करने के. तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको इलेबोरेट करेंगे। दैट इज अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1। यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और ये 1। इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3। दिस इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ our question. So in this way, we solve आवाज आ रही है? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो अपना। माइक ऑन करो। आवाज आ रही है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? ओके, आवाज जो पढ़ा चुके हैं वो दोबारा देख लेना, वो स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं आगे पढ़ा रही हूँ, उसको देख लेना, फिर मैंने आगे फिर बता दूंगी। Next trigonometric formula is cos a plus b of the count, आवाज बंद करो, a माइनस b। अपना वॉइस बंद करिए। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, अब देखिए आपने tan a प्लस बी का जब फॉर्मूला लिखा तो आपने क्या लिखा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आपका tan का फॉर्मूला है। लेकिन जब आप कॉट का फॉर्मूला लिखो तो आप इसका उल्टा लिख दो, क्योंकि कॉट और tan आपस में इनवर्स होते हैं। और एक चीज और करनी है, उल्टा लिखने में जब ये इधर tan a tan b है, लेकिन कॉट a आपका इधर रहेगा, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ये आपका फॉर्मूला होगा, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने आपको बताया tan a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ माइनस होता था, यहाँ प्लस होता, तो इसी से अगर हम कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस है ये तो माइनस कॉट बी। So these are the two formulas for cot A plus B and cot A minus B. Now in this section we learn different topics on the trigonometric function of cot A plus B and cot A minus B. Now we solve one by one. For example, we have a data cot A is equal to pi by 4, cot B is equal to pi by 3. And we have to find cot A plus B. I'm taking arbitrary questions, concept based question, and I'm just give you want to give you concepts. So the formula for that is cot A, cot B
-1 ओवर कॉट ए प्लस कॉट बी। ये प्लस का फॉर्मूला है तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। कॉट ए की वैल्यू है π/4, कॉट बी की वैल्यू है π/3, सॉरी, for example this is cot π/4. For example, I will say A is equal to π/4 and B is equal to π/3. Okay. So we have the formula cot π/4 cot π/3 minus 1 over cot π/4 plus cot π/3. Now we substitute the different values of these. तो cot π/4 का मतलब क्या होता है? π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कैसे? 180 लिखो, 4 लिखो, इसको डिवाइड करो, 45 आ जाए। इसी तरह से π/3 निकालना होगा तो 180/3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चाहे cot 45 हो चाहे tan 45 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके अलावा tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और ये वैल्यू होती है cot 30 की। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और ये वैल्यू होती है cot 60 की। यहाँ से cot 60 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/√3। अब ये सारी वैल्यूज हम इन इक्वेशन में रखेंगे और अपना आंसर सॉल्व करेंगे। हमारे पास है cot π/4, cot π/4 की वैल्यू 1 क्योंकि cot 45 है। मैं फिर से लिखती हूँ cot π/4 cot π/3 -1 ओवर cot π/4 plus cot π/3. Now I am going to substitute all the values over here, which is equal to 1 into π/3 मतलब 60 डिग्री, that is 1/√3 -1 1 plus 1/√3। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके हिसाब से स्टैब्लिश कर लो तो सॉल्व करने में आसान होता है। नीचे अंडर रूट कभी नहीं रहना चाहिए। हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 - √3 इंटू 1 - √3, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 1 + 3 -2 √3 अपॉन 1 - 3, ये हो जाएगा 4 -2 √3 अपॉन -2। आप इसको सॉल्व करोगे -2 + √3, दिस इज अवर प्रॉपर आंसर। इस तरीके से अगर कॉट का फॉर्मूला करना होगा और आपको टैन और साइन के समझने हैं तो और भी वीडियोस बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अब इसके बाद मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 cos b इज इक्वल टू √3/2। और मान लीजिए आपको निकालना है cot a माइनस, आप कैसे निकालें? अब आपको जो वैल्यूज है वो साइन ए और cos b अलग अलग दिया हुआ है, पूछा गया है cot a माइनस b, तो आप कैसे इसको सॉल्व करें? हमारा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा?
कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। अब एक बात ये समझिए, अगर हमें कॉट ए निकालना है तो हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन। अगर हमें कॉट बी निकालना है तो हम लिखेंगे कॉस बी अपॉन साइन। ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए तो दिया हुआ है लेकिन कॉस ए नहीं दिया, तो अब हम पहले यहाँ पे साइन ए को यूज करेंगे क्योंकि बी से यहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ए चाहिए। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2। तो अब आप यहाँ से कॉस ए निकालिए। कॉस ए का फॉर्मूला लगाइए, √1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ए की। इसी तरीके से आप यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ आपको कॉस भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से साइन भी निकालिए, यानी √1 माइनस √3/2 होल स्क्वायर। अब इतना आप समझते हैं कि ये क्या फॉर्मूला लगेगा। √1 माइनस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/2 अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से बन गया, यानी √1/4 which is equal to 1/2. So this is the value of sin b. Now we substitute different values in cot A and cot B and find the values of cot A and cot B. तो यहाँ पर आप देखो sin A है 1/2, cos A है √3/2। ठीक है, मैं बीच का रब कर रही हूँ, देखिए। तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos A ऊपर रखना है यानी √3/2 ये लिखा हुआ है आपका, और ये 1/2। ठीक है, अभी एक सॉल्व होके कॉट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा √3 की बात, 2 और 2 कट जाए। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉट बी का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू कितना है √3/2, साइन बी का वैल्यू हमने निकाला है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट बी की वैल्यू भी कितनी आ गई √3। दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, द वैल्यूज आर सेम। आपकी वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती है तो आप वैसा सॉल्व करिएगा, कोई मेरे को पता नहीं था कि सेम वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो कॉट ए कॉट बी दैट मीन्स √3 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ पर आपका √3 माइनस √3 यानी ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 और √3 माइनस √3। वैसे तो ये आ गया 4/0, लेकिन किसी भी गिनती के नीचे जीरो होता है तो अल्टीमेटली उसका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन आपकी कुछ वैल्यूज भी आ सकती है और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद अगले वीडियोस में क्या होगा कि सारे डिफरेंट मिक्स रहेंगे और आपको सॉल्व करना होगा। इसी में एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूंगी। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि आप कॉट 75 बताइए, या आपको बताना होगा कॉट 15 डिग्री बताइए। तो आपने क्या किया, कॉट 45 प्लस 30 ले लिया और सॉल्व कर लिया तो 75 आ जाए। इसी तरीके से अगर आप कॉट 55 में से 30 माइनस कर दोगे, सॉल्व कर लोगे तो कॉट 15 आ जाए। फॉर्मूला अलग अलग लगाओगे। जैसे यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। यानी आपने इसको सॉल्व किया तो कॉट 45 कॉट 30 -1 ओवर कॉट 45 प्लस कॉट 30। सॉल्व करो, कॉट 45 1, कॉट 30 यानी √3 -1 कॉट 45 1 कॉट 30 √3। फिर आप इसको सॉल्व करो। मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जब अगर ये माइनस के साथ है तो फिर ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और आप सॉल्व करते चले जाएंगे। इस तरीके अगर वैल्यूज भी दी हुए तो भी आप फॉर्मूले को लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन और कॉस पर। अभी ये क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं और आपके साथ शेयर करूंगी। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल cos 11 डिग्री
प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप क्या करो, इसको आप tan में बदलो। तो cos 11 से अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 11 अपॉन cos 11 प्लस sin 11 डिग्री लगा लेना अपॉन cos 11 डिग्री। इसी तरीके से cos 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 अपॉन cos। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, 1 प्लस tan 11 ओवर 1 माइनस tan। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 को हमने लिखा tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री। तो फॉर्मेट में फॉर्मूले में रखा 1 ऐसे ही रखा, यहाँ पर हमने tan 45 tan 11 रखा क्योंकि tan 45 तो वही होता है, तो चाहे यहाँ लिखते यहाँ हमने इसको एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इसके बाद बहुत आसान हो गया, इसको हम अपने फॉर्मूले में सेट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ ऊपर प्लस वाला है तो प्लस का फॉर्मूला हो गया, यानी 45 प्लस 11, यानी आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, tan 56 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से कॉट का फॉर्मेट भी हो सकता है कि हम इसको मान लीजिए sin 11 को अगर हम इधर से डिवाइड कर देते तो ये कॉट में चेंज हो जाता, उसी हिसाब से हम ये आंसर्स निकाल लेते हैं। So these are the trigonometric functions, and in the next video we will discuss some more things about the trigonometric functions. अगर आपको स्टार्टिंग के वीडियोस देखने हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ trigonometric functions I will discuss later. Bye.